Okay, let me discuss it again. देखो तो is it visible? So we have started what is tree. Then the tree, what do you mean by tree? The properties of a tree. What is age, parent node, child node, sibling. याद है तो सबको? Degree. Yes. So how you are going to compute the height of the tree? Height कैसे compute करोगे? If this is your tree, then height कौन सा होगा? What will be the height of the tree? It will from down to up or up to down? Down to up. Down to up. Down to up. And the leaf nodes of the tree are? Height will be zero. Leaf nodes are? So the nodes that don't have any child node are called as your leaf node. So leaf node है D, I, J, F, K, H. And non-terminal nodes किसको बोलते हैं? Which are called as the non-terminal nodes of the tree? Node at least having one child. Node having at least one child are called as your non-terminal nodes. So B, E, G, C, A, these are your non-terminal nodes of the tree. Okay. Height. Height is the total number of edges that lies on the longest path from any leaf node to a particular node is called the height of the tree. Okay, so longest path from leaf node to a particular node. And depth is the longest path from the root. Okay, so this is yes. So this is your binary tree. Binary tree is a special type of tree which have at most two children. Okay, so here we have constructed the binary tree. ये binary tree construction हो गया था. Next we are discussing array representation of binary tree. How we are going to represent binary tree with the help of array, isn't it? Yes. Okay, so this is the formula. You all should remember the formula when we are going to start the array index with 0. अगर array का index हम लोग 0 से शुरू करेंगे, अगर I is at if root or the parent node is at I, then the left child will be at 2i plus 1 and right child will be at 2i plus 2. So this is 0. If the parent index is at 0, then left child is at 2i plus 1. 1 हो गया, right child हो गया 2. Again, this is the parent index. I का value 1 है. So 2i plus 1. तो I plus 1 कितना हो गया? 2 into 1 2 plus 1 3. And right child will be at 4. If this is the parent index, 2i, 2 into 2 4 plus 1 5. A plus 2. Okay, so if this is the parent index, 3 into 2 6, 6 plus 1 7, then 6 plus 2 8. ये 5 है तो ये कहाँ पर आ जाएगा?
It will be at 11. So it will be represented as 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, and then here it will be 18. Are you clear how it is being represented in the array? देखो ये ट्री है. As we are going to represent in the form of array, if the parent node is at I अगर 0 लोकेशन में है, then left child तुम्हारा फॉर्मूला के हिसाब से कहाँ आएगा? 2i plus 1 and right child will be at 2i plus 2. 2i plus 2. So यहाँ पर i का वैल्यू कितना हो गया तुम्हारा? हाँ, i का वैल्यू इज 0. So 2i plus 1. So 2 into 0 plus 1 कितना हो गया? 1. And here 2 into 0. 1. For this, इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 2 into 1 plus 1, it is 3. 4. I का वैल्यू 1 है तो राइट चाइल्ड कहाँ पर रहेगा? 2 into 1, 2. 2 plus 2 it is 4. Similarly, if this is my I, अगर I का वैल्यू 3 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 2 into 3 plus 1 कितना हो गया अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला? 7. And the right child will be at 2 into 3 plus 2 कितना हो गया? 8. So अगर ये parent node है, इसका left child है तुम्हारा this one and the right child is this one. Okay. Similarly, if I is 5, then इसका left child कहाँ पे रहेगा? This is your left child, तो left child कहाँ पे रहेगा? 2 into I का वैल्यू कितना है? 5 plus 1, it is 11. Okay, it is one of the most important question. Okay, you may have this type of question. So और एक problem बना लो. Let this is my tree. Okay, represent the tree in the form of array. Represent the tree in the form of array. आंसर बना के मुझे शेयर करो. Excuse me, ma'am. Yes. मैम वो 2i वो समझ में ठीक से नहीं आया मैम. 2i. हाँ बोलो. मैम वो 2i plus 1 वाला समझ में ठीक से ये समझ में नहीं आया? नहीं मैम, प्लीज एक बार. नहीं आया? अरे देखो ये फॉर्मूला है. ओके, ये फॉर्मूला है. हाँ, अगर पेरेंट नोड, इफ द पेरेंट नोड इज एट नंबर क्या है? 0. आई है तो उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर रहेगा? 2i plus. ओके, ये फॉर्मूला है. ओके,
एंड राइट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 2i plus 2i plus 2. 2। हाँ, अगर तुम इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू कर रहे हो? 0 से. 0 से। अगर इंडेक्स नंबर तुम 1 से शुरू करोगे तो अगर पेरेंट नोड i है तो लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 2i. एंड राइट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 2i plus 1. ओके। अगर इंडेक्स नंबर कहाँ से शुरू करोगे? 1 से. 1 से। ठीक है। सो ये जो एबव एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर मैंने 0 से शुरू किया है, Yes ma'am. तो मैं ये फॉर्मूला ले रही हूँ, आई एम गोइंग विद दिस फॉर्मूला। ओके, as we are representing in array it will always starts with 0। 0 से ही शुरू करेंगे। अगर ये i का वैल्यू 0 है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पे रहेगा? 5 इज द लेफ्ट चाइल्ड, तो वो कौन से इंडेक्स में रहेगा? 1. Index 1. 1 में। एंड राइट चाइल्ड विल बी एट 2. 2। अगर i का वैल्यू अभी तुम्हारा 2 है देन 6 का लेफ्ट चाइल्ड कौन से इंडेक्स में रहेगा? 5. 5 एंड राइट चाइल्ड इज एट 6. 6। सो उस हिसाब से यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है मैम. ओके। ठीक है मैम. हाँ, अब ये वाला बनाओ, डू दिस वन। मैम हाँ बोलो। मैम ये तो बहुत लंबा एरे बन जा रहा है। हाँ, अरे लंबा ही बनेगा, अरे बहुत लंबा ही बनेगा। ठीक है, अब मुझे इंडेक्स नंबर्स बताओ। 4 का कहाँ पर रहेगा? 4 इज एट 0, 0, 0. 3, 1, 1, 5, 2, 2. 2, 6, 3, 7, 7, 4, 4, 8, 5, 9, 6, 6, 6, 10, 7, 7, 7, 11, 8, 12, 11, 11, 13, 12, 12, 12, 14, 25, 25, 25 और ये वाला 26, 26। ओके, सो अरे इंडेक्स अभी 0 से कहाँ तक जाएगा तुम्हारा? 26, 26 तक जाएगा। ओके, वो बहुत लंबा ही बनेगा। दिस इज वन ऑफ योर सेमेस्टर क्वेश्चन, ये सेमेस्टर क्वेश्चन भी है, नॉट एग्जैक्टली दिस वन बट एग्जैक्ट क्वेश्चन मैं बता देती हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Then again you continue. 22, 23, 24, 25, 9, 10, 11, 12, 13. Then यहाँ पर 14, 15. Okay. So in this way you are going to represent. So this is your semester question. This is 7, 8, 9, 10, 11 के नीचे 11, 12 and 9 के नीचे 15. Again here 16 and 16 is 17 and 18. Okay. So
this is your one of the questions in your semester exam. Okay, have you drawn the tree? Have you done this tree? बना लो. Okay, you do it. Practice बाद में कर लेना. I will move to the next part. Linked list representation देख लो. मैम एरे रिप्रेजेंटेशन में हल्का सा कुछ समझ में नहीं आया. नहीं आया समझ मैम में? अगर दो हाँ बोलो. सिर्फ दो ही हो सकता है ना, दो से ज्यादा नहीं ना? नहीं, दो से ज्यादा नहीं. एक नोड का दो चाइल्ड, नोड नहीं हाँ, एक पेरेंट का दो चाइल्ड. क्योंकि हर एक नोड का कितना चाइल्ड रहेगा एट मैक्स? 2 चिल्ड्रन. दो से ज्यादा नहीं. मतलब वन भी नहीं हो सकता. हाँ, 1 रह सकता है. You can have a single मैम child. तो फिर एरे रिप्रेजेंटेशन में पता कैसे चलेगा कि वन है किसका? क्या 1 है मतलब? ये देखो, ये तुम्हारा ट्री है, ठीक है. ये ट्री को हम लोग जब अरे में रिप्रेजेंट करेंगे, हम लोग पहले क्या लिख रहे हैं? व्हाट वी आर राइटिंग? ट्री में हम लोग ने पहले क्या लिखा? इंडेक्स नंबर मैं लिख दे रही हूँ, isn't it? हाँ, तो जब भी हम लोग का ट्री बनता है, इट इज नॉट द कंप्लीट बाइनरी ट्री. ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं है, क्योंकि हमने हर एक लेवल में फुल नहीं किया है डेटा. ओके, आई हैव नॉट फुल द डेटा इन ईच एंड एवरी लेवल. ओके, सो अगर डेटा फुल होगा, अगर मैंने यहाँ पर कोई 10 के बाद कोई डाटा डाला है, 10 के बाद अगर मैंने डाल दिया 16, सो ये 16 कहाँ पर आएगा? किसके लेफ्ट में आएगा? 16 तुम्हारा 10 के लेफ्ट में आ रहा है, तो इसका इंडेक्स, ये कौन सा इंडेक्स लोकेशन में स्टोर होगा? 2 into 7 plus 1, it is 15. तो यहाँ पर मैं क्या स्टोर करूंगी? 15. हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला को लेके चलेंगे. अगर पेरेंट नोड आई है, उसका लेफ्ट चाइल्ड इसी इंडेक्स में होगा और राइट चाइल्ड इस इंडेक्स में होगा. ओके, कंपल्सरी नहीं है कि तुम्हारा आरए पूरा फुल होना चाहिए. इफ यू हैव स्किप्ड सम ऑफ द चाइल्ड ऑफ द ट्री, देन नो प्रॉब्लम. उस हिसाब से तुम्हें आई यहाँ पे लेवल हो जाएगा. कहाँ पर आई? यस मैम. आई तुम्हारा इंडेक्स नंबर है, हर एक नोड का इंडेक्स नंबर है. मैम ये 26 कॉलम कैसे बन रहा है? हाँ मैम ये 26 कॉलम कैसे बन रहा है? 26 वो जो नंबर ऑफ रोज. यस मैम. ये तुम्हारा ट्री है ना, यू आर कैलकुलेटिंग द वैल्यू. उसका लेफ्ट चाइल्ड कहाँ पर आ रहा है, राइट चाइल्ड कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर 13 कौन से लोकेशन में है? 13 इज एट विच लोकेशन? अच्छा, आई यस मैम. ओके, 12 है ना, सो 12 राइट साइड से मैम कैलकुलेट करेंगे 2i + 2. हाँ, 12 into 2 + 1 प्लस राइट चाइल्ड कितना हो गया? +2. सो 24 + 2 कितना हो गया? 26. 26. सो यहाँ पर कितना आ गया? 26. देखो, मैं यहाँ पर ट्री एक ड्रॉ करती हूँ. यार, आई एम डूइंग द कंप्लीट बाइनरी ट्री. आई हैव स्किप्ड दैट पार्ट, वो मैं अभी बताऊंगी. ये देखो, मैंने एक ट्री यहाँ पर ड्रॉ किया है. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, this is 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35 and 36, 37, 38, 39, okay, 40, 41, this one. तो हम लोग का रूल क्या है? टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट फिल करेंगे ट्री को. अगर फिल किया ये मेरा ट्री बना. दिस इज नोन एज माई कंप्लीट बाइनरी ट्री. इंडेक्स नंबर देखो 8, 9, 10, 11, 11 गया, ये हो गया 12, 13, 14, this is 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30 and 31. Okay, this is my complete binary tree. ओके लेकिन अभी तक हम लोग ने जो ट्री कंस्ट्रक्ट किया है यहाँ पर इट इज नॉट द कंप्लीट वन. अगर कंप्लीट बनेगा तो अपना अरे पूरा सारा इंडेक्स क्या हो जाएगा? फिल हो जाएगा. फिल हो जाएगा. लेकिन ये यहाँ पर आधा आधा का चाइल्ड नोड्स नहीं है. सो दैट इज व्हाई अरे के कुछ कुछ इंडेक्स लोकेशंस क्या है? ब्लैंक है. सो दिस इज अगेन वन टाइप ऑफ बाइनरी ट्री. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम. और किसी का डाउट है? आकर्ष आकर्ष आशुतोष, डू यू हैव एनी डाउट नाउ? हम इस तरह से तो एकदम स्पेस वेस्ट हो जाएगा. हाँ स्पेस वेस्ट होता है, इसीलिए हम लोग अरे को अवॉइड करके क्या यूज करते हैं? लिंक लिस्ट. हाँ, so we are using linked list in order to represent the tree. Okay, so depending on our requirement either we are going for the array one or we are going for the linked list one. पता चल रहा है ना linked list का काम क्या है? So now check for the linked list representation of the tree. Linked list representation of tree. Okay, now this is my tree. Okay, H यहाँ पर मैंने एक डाल दिया I. Again, this is not my complete binary tree, but somehow it is a tree, binary tree, because a binary tree will have at most कितना children? How many children a binary tree will have? At most 2 children. तो देखो ये हो गया मेरा एक नोड, ये डबल लिंक लिस्ट में रिप्रेजेंट होगा. सो प्रीवियस नोड किसको पॉइंट करेगा? प्रीवियस नोड विल पॉइंट टू लेफ्ट चाइल्ड and the next node will point to right child. Similarly, previous node will point to the left child, next node will point to the right child. Okay, and next node will point to the right child. देखो जहां जहां पर तुम्हारा डेटा वैल्यू नहीं है, इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर क्या सेट होगा? नल. इसके लेफ्ट एंड राइट में कुछ भी नहीं है, नल सेट होगा. अगेन लेफ्ट एंड राइट विल बी नल. यहाँ पर राइट में नल होगा. दिस इज योर नल, दिस वैल्यू इज नल. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ लिंक लिस्ट. ओके, एंड ए के एड्रेस कहाँ पर रहेगा? स्टार्ट में. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो यहाँ पर हमें ट्रैवर्सल करने के लिए दिक्कत होगा ना. वी विल फेस डिफिकल्टी व्हाइल ट्रैवर्सिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ लिस्ट. मैम तो लिंक्ड लिस्ट में यहाँ पे 3 रहेगा, एक प्रीवियस और एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड. ये प्रीवियस है, प्रीवियस में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा, नेक्स्ट में
राइट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा, ठीक है। एंड प्रीवियस में लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस रहेगा, और यहाँ पर क्या रहेगा? वो मतलब पीछे नहीं जा सकते हैं। नहीं, मैम फिर से बोलें, नेटवर्क हाँ? क्या हुआ? फिर से बोलो, थोड़ा फिर से बोल देंगे। हाँ हाँ बता रही हूँ। हाँ देखो, लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में ईच नोड, ओके, इट विल बी रिप्रेजेंटेड इन दिस वे। यहाँ पर एक नोड है, ओके, सो द प्रीवियस, ये प्रीवियस नोड है, दिस इज माय नेक्स्ट नोड। इफ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, सो प्रीवियस नोड में हमेशा किसका रेफरेंस रहेगा? इट विल होल्ड द रेफरेंस ऑफ द left child, and the next node will hold the reference of the right child, okay। यहाँ पर B आ गया लेफ्ट एंड ये हो गया तुम्हारा राइट चाइल्ड C, ओके। इफ अगर इसका कुछ लेफ्ट चाइल्ड है, अगेन ये प्रीवियस में रहेगा लेफ्ट चाइल्ड का वैल्यू, एंड यहाँ पर किसका वैल्यू रहेगा? राइट चाइल्ड, ओके। अगर इसके लेफ्ट में कुछ नहीं है, यहाँ पर हम लोग नल डाल सकते हैं, दिस इज माय E, ओके। इसके लेफ्ट अगर राइट में कुछ नहीं है, नल डाल सकते हैं। अगेन ये हो गया तुम्हारा लेफ्ट चाइल्ड, दिस वन इज योर राइट चाइल्ड, F नल, यहाँ पर कुछ नहीं है, नल डाल सकते हैं। सो यहाँ पर मेरा G है, मैं इसके लेफ्ट में एक वैल्यू डाल दूंगी, सो इट विल बी H, और यहाँ पर कुछ नहीं है, नल, ओके। सो ये जो प्रीवियस नेक्स्ट नोड लेते थे, प्रीवियस नोड में लेफ्ट चाइल्ड का रेफरेंस रहेगा और नेक्स्ट नोड में राइट चाइल्ड का रेफरेंस रहेगा, ओके। सो यहाँ पर तुम्हें प्रॉब्लम किस लिए होगा, और A का रेफरेंस कहाँ पर रहेगा? स्टार्ट में रहेगा, दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, यू शुड नो, ओके। प्रोग्राम के लिए कुछ भी नहीं है, प्रोग्राम यू विल स्टडी इन द नेक्स्ट सेमेस्टर, only remember the concept. So how you are going to do the traversal in the this type of tree? Is a traversal is possible? ये sequential है क्या? Is it sequential? तो यहाँ पर तुम लोग ट्रैवर्स कर सकते हो इजीली, A के बाद तुम लोग B तक पहुंचोगे। Can you traverse easily in tree? Yes, ma'am. So for the traversal in linked list, in tree, we have three types of algorithm. Tree traversal में तीन तरीके के algorithm यूज होते हैं। Three algorithms are there. One is your pre-order traversal, because here we are not following the sequential traversal. Sequential नहीं जाएंगे. So here we are following pre-order traversal, post-order traversal, and the other one is your in-order traversal. देखो, you can easily also represent one expression with the help of tree. So if this is a tree, तुम्हारा रूट में प्लस आ गया है, अगर इन ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे तुम्हारा आंसर A प्लस B आएगा। अगर प्री ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे प्लस AB आएगा, अगर पोस्ट ऑर्डर में ट्रैवर्स करोगे AB प्लस आएगा। तो ये कौन सा एक्सप्रेशन हो गया? ये स्टैक में पढ़े थे ना, इनफिक्स टू प्रीफिक्स, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो स्टैक में क्या हो रहा था, तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए कुछ एल्गोरिथम याद कर रखने पड़ते हैं। स्टैक में डालो, निकालो, फिर एक्सप्रेशन में डालो। सो इफ यू आर गोइंग टू पुट इन अ ट्री, वी कैन इजीली डू इट बाय यूजिंग प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और इन ऑर्डर ट्रावर्सल, इजंट इट?
So there are a number of things are there, and in every aspect, depending on the requirement, you are going to use a particular data structure. Either you will use tree or you are going to use tag, और कहीं पर क्यों यूज होगा तो कहीं पर तुम्हारा लिंक लिस्ट यूज होगा तो कहीं पर तुम अरे यूज करोगे. Okay, are you clear with the linked list representation of the tree? लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में किसी का कोई डाउट है क्या? So before we move to the tree traversal, let me check the different types of binary tree. Is someone is saying something? Okay, okay, Pranav, just a minute. This one. Yes, I'm done. Okay. So before we move to the tree traversal, and definitely you will have questions on every discussed till now. Tree के हर एक portion से question sure आएगा. So tree traversal. Next week यहाँ ये तीनों में से कोई एक question sure आएगा. In order to traverse through the tree, and it is very few time लेगा. And if you have heard अच्छे से सुने हो what I have told you, and I don't think you need again further इसे और पढ़ने की कोई जरूरत भी है. So next comes to the types of the tree. याद रखो, I will just explain the concept. So types of the tree, types of binary tree. So तुम लोगों को तो पता है binary tree में at most, I am repeating again and again, at most how many children? 2 children. Okay, so binary tree, it can be of strictly binary tree. Another one is your full binary tree. एक तुम्हें complete binary tree, and other one is your almost complete binary tree. Okay, again this part is also important. What are all those things? Diagram दिया रहेगा, तुम्हें बोला जाएगा कि check it whether it is a strictly binary tree or complete binary tree or almost complete binary tree. Okay, so how you are going to identify these 3 different types of tree? 3 or 4 different types of tree. देखो, first one is strictly binary tree. Strictly binary tree. I am just writing a shorter definition. In strictly binary tree, just remember, in strictly binary tree, every node has 0 or 2 child node. हर एक नोड में कितना चाइल्ड नोड रहेगा? आइदर 0 और 2 चाइल्ड नोड. याद रखना, इन स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री एवरी नोड हैज 0 और 2 चाइल्ड नोड. सो इफ दिस इज माय ट्री, here I have done 2 trees. So ये फिगर A है, ये फिगर B है. Now just tell me, और फिगर 1 and this is my figure 2. ये दोनों में से strictly binary tree कौन सा है? Which one is the strictly binary tree? Second. Second figure. Remember, याद रखना, हर एक नोड का either it will have 0 child or no child or 2 child. Okay, either 2 or 0. It is for strictly binary tree. So next one, check for the complete binary tree.
complete binary tree, it states that it is a binary tree in which every label except the last label is completely filled. And all nodes are as far left as possible. So इस ये सिंपल रूल फॉलो कर रहा है. कंप्लीट बाइनरी ट्री, यू आर गोइंग टू फिल द ट्री इन द फॉर्म ऑफ टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. टॉप से लेके बॉटम तक जाओगे और लेफ्ट से लेके राइट तक जाओगे. ओके, टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट. एंड इट इज सेइंग दैट हर एक लेबल फुल होना चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेबल. ये देखो, आई एम डूइंग द ट्री हियर. ओके, H I. So यहाँ पर क्या हो गया? This tree is कम. हर एक लेबल में क्या है? Either two children, हर एक लेबल में है, and last लेबल fill है क्या completely? Is it full completely? No. So it is known as your complete binary tree. So if another tree is this one, ये देखो और एक tree का diagram. Here I am doing 2 to 3 diagrams. G, F and G. ये फिगर 1 है, ये 2 है, 3 है. बताओ तो कौन सा वाला कंप्लीट बाइनरी ट्री है? 2 and 3. 2 and 3 अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. हर एक लेबल फुल होना चाहिए. अगर इनकम्प्लीट भी है वो एक्सट्रीम कहां पर होगा? as far left as possible. ओके, दिस वन. ओके, ये कंप्लीट है, दिस इज फुल. बट यहाँ पर क्या हो गया? H एंड I कहां पर है? इट इज बिलो E. सो ये लेफ्ट की ओर नहीं है. सो इट इज नॉट फॉलोइंग दिस रूल. टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट वाला रूल फॉलो नहीं कर रहा है. सो इट इज नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री. फिगर 1. Are you clear? Yes, ma'am. Okay. So next one, full binary tree क्या होगा बताओ तो? What do you mean by a full binary tree? मैम, हाँ, तो फिर वहाँ पे बस जो फिगर 3 वही बस तो कंप्लीट बनेगी. yes, yes. मैम जो फिगर 3 वहाँ पे है बस वही वाला होगा कंप्लीट बनेगी. ये भी होगा कंप्लीट बाइनरी ट्री. 3 भी है, 2 भी है. अच्छा, लेफ्ट. यस मैम. Okay, both are complete binary tree, but not figure 1. Okay, it is not following the rule. Top to down and left to right. Okay. Next, full binary tree. देखो कंप्लीट बाइनरी ट्री में अगर एरे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो कोई ब्लैंक नहीं छूटेगा. नहीं छूटेगा ब्लैंक फुल बाइनरी ट्री में. ठीक है, अगर फुल बाइनरी ट्री में अगर हम लोग अरे रिप्रेजेंट करेंगे तो कोई भी ब्लैंक नहीं छूटेगा. So a full binary tree is also known as proper binary tree or two tree. It is also known as proper binary tree or two tree. Okay, so यहाँ पर क्या होगा? This is the example. Every node will have exactly how many children? 2. 2. Very good. I, J, K, L, M, N, 0.
Okay, so here every node except the leaf node has 2 children. हो गया? Over? मैम मैम एक डाउट था हाँ पूछो. मैम एक बार स्क्रॉल अप कीजिए ना स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री में A full binary tree is also known as your strictly binary tree. Okay, but in strictly binary tree, it is not. It is saying that either it will have 2 children or 0 children. लेकिन वो लेबल वाइज फुल करने के लिए नहीं बोल रहा है. समझ में आ रहा है? It is not saying that you need to full it in the label wise. But in full binary tree क्या होगा? This one. हर एक नोड का 2 चिल्ड्रन रहेगा एक्सेप्ट द विच नोड? लीफ नोड. लीफ नोड. यही डाउट था ना तुम्हारा? यस मैम. हाँ, okay. So we will move to the next part. Almost complete binary tree. Mark it very important. Almost complete binary tree. देख लो. Almost complete इसमें और कंप्लीट बाइनरी ट्री में थोड़ा कंफ्यूजन है. ओके, सो यू चेक इट केयरफुली. इन ऑलमोस्ट कंप्लीट ट्री all leaves at lowest and next lowest label only. So ये बोल रहा है कि जो कंप्लीट बाइनरी ट्री है, दिस इज योर कंप्लीट बाइनरी ट्री, isn't it? This one is your complete binary tree. Figure 2 and 3 क्या है? कंप्लीट बाइनरी. Complete binary tree, but figure 1. Figure 1. Figure 1 is also a binary tree. Yes, ma'am. Okay, but यहाँ पर हम लोग ने क्या skip कर दिया है? D का left and right child नहीं है? Yes, ma'am. Okay, so it is known as your almost complete binary tree. मैम ये वाला स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री भी तो होगा ना? हाँ, ये strictly binary tree भी होगा. But this is not a strictly binary tree. Figure 3. यस मैम. Okay, almost complete binary tree. Okay, otherwise और एक डायग्राम दिखा देती हूँ. In almost complete binary tree, यहाँ पर और एक पॉइंट याद रखो. All nodes except the lowest label is full. Okay, so A, B, C, D, E, F, G.
यहाँ पर एच आई है, जे के, एंड देयर इज अनदर डायग्राम ए बी सी डी ई एच आई, ओके, जे के. So this one, ये जो फिगर 1 है एंड दिस वन इज फिगर 2. सो फिगर 1 में देखो तो हर एक लेबल फुल है ना तुम्हारा, एवरी लेबल इज फुल एक्सेप्ट द लास्ट लेबल. Here every label is full except the last label, so it is known as your almost complete binary tree. But in figure 2 will known as your which type of tree? ये कौन सा ट्री होगा बताओ? स्ट्रिक्ट होगा. Strictly binary. Yes. Strictly binary tree. Figure 2 is a strictly binary tree but not complete binary tree or almost complete binary tree. ये strictly binary tree है, okay, but not almost complete binary tree. And complete binary tree का simple rule है top to down and left to right. ओके, याद रहेगा ना? मैम हाँ बोलो. मैम ये फर्स्ट पॉइंट एक बार और समझाते हो, ऑल लीफ एट लोएस्ट एंड नेक्स्ट लोएस्ट. ये ऑलमोस्ट कंप्लीट था. यस मैम. ऑल द लीव्स एट द लोएस्ट एंड नेक्स्ट लोएस्ट लेवल ओनली, ये बोल रहा है. ये जो पॉइंट है दिस इज ये पॉइंट को हटा दो, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड. जस्ट रिमूव दिस वन. ये एंड लास्ट पॉइंट का मतलब दोनों का सेम है. ऑल द नोड एक्सेप्ट द लोएस्ट लेवल इज फुल. इट इज इन सिंपलर टर्म्स, all the nodes except the lowest label is full. Okay? सारा नोड तुम्हारा सारा लेवल में फुल होना चाहिए एक्सेप्ट द लास्ट लेवल इन ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री. ओके, एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री कौन सा रूल फॉलो करेगा? टॉप टू डाउन एंड लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. ओके, एंड फुल बाइनरी. हाँ बोलो. Ma'am, is every full binary is strictly binary? Every full binary, you can say that every full binary tree is a strictly binary tree because either the node will have 0 or 2 children, so it is known as proper binary tree or 2 tree. Okay. Okay, they will draw a tree and they will ask you whether you need to identify whether it is a strictly binary tree or a complete binary tree or a full binary tree or almost complete binary tree. Okay. So, should I move to the tree traversal? देखो, traversal, the last part. Again, it is most important part. Tree traversal. Someone is saying something. Then tree traversal. Here we have 3 types of traversal. One is pre-order traversal, one is post-order traversal, and another one is your in-order traversal. Okay, so first we will move with the pre-order traversal. I am not writing any algorithm for it. बस मैं रूल लिखूंगी, रूल को नोट डाउन कर लो.
pre-order traversal, it is saying that first you will visit the root node, then left node को visit करोगे, then right. So logic is simple: root, left and right. Okay, simple है. Visit root and here recursive है सब. Then again tree और node. कहाँ जाओगे? लेफ्ट को जाओगे. अगेन ये प्री ऑर्डर है ना. दिस इज प्री ऑर्डर लेफ्ट, प्री ऑर्डर राइट. ये 3 पॉइंट याद रखना है. सो यहाँ पर रूट नोड क्या है? विच वन इज द रूट नोड? ए के लेफ्ट में क्या है? बी. अगेन बी विल बिकम द रूट नोड फॉर दिस सब ट्री. ये सब ट्री के लिए बी रूट है. फिर कहाँ जाओगे? रूट लेफ्ट राइट. सो बी के लेफ्ट में क्या है? B. Again, left of B is H. So root left हो गया. Again H के left right में कुछ नहीं है. हम लोग यहाँ पर stop करेंगे. Root visit हो गया. Left chair. अब इसका left and right कुछ नहीं है. So back track होगा D को. D के left को visit कर चुके हैं. Right में कुछ है क्या? Do we have any value in the right? No, ma'am. नहीं है. फिर कहाँ जाएंगे? So rule is simple. A B C अगर ट्री है सो पहले रूट A B C इस ऑर्डर में तुम्हारा आउटपुट आएगा. सो A हो गया. A के लेफ्ट में B था, B के लेफ्ट में D है, D के लेफ्ट में H है. सो लिख लिए. H के लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, बैक ट्रैक किए. D के लेफ्ट को लिख चुके हैं, राइट में कुछ नहीं है. D था वो लिख चुके हैं. अब क्या लिखेंगे? विच ऑर्डर, विच नोड वी आर गोइंग टू विजिट? E. हो गया. फिर A के लेफ्ट नोड को सारे लेफ्ट सब ट्री को विजिट कर चुके हैं. Yes. Then we will move to the right. अब राइट में क्या है? C. C will be my now new root. So root left. Left में क्या है? F. उसके बाद I. I के बाद G. I हो गया. रूट हो गया, लेफ्ट हो गया. उसके बाद कहाँ जाएंगे? J. J के राइट में लेफ्ट में क्या है? K. K. उसके बाद कहाँ जाएंगे? C का सारा लेफ्ट नोड विजिट कर चुके हैं. अब कहाँ जाएंगे? G. ओवर. Is your traversal is over? Yes, ma'am. Okay. So प्री ऑर्डर में पहले क्या आएगा? रूट, देन लेफ्ट, देन राइट. तो और एक डायग्राम का कंप्लीट करो. बताओ तो. What will be the pre-order traversal of this one? पहले कौन सा नोड आएगा? A, then B. B के बाद D के बाद E के बाद H. के बाद I के बाद C J F J L K L then G. Over. 2 marks, only this much. Okay.
So that is why I'm saying data structure is easier than your ICP, because here you need to solve a number of problems. स्टैक से आएगा, क्यू से आएगा. क्यू का एक दो प्रॉब्लम हम लोग सैटरडे को क्लास है. I will discuss few problems on stack and queue also. हाँ 3 तक आएगा. इसका बना दो जल्दी जल्दी, क्लास खत्म करेंगे. What will be the answer? A B D H I E C A B D H I, then I के बाद E J I के बाद E J, then K L M उसके बाद C F G. CFG. Okay. Over. So next class we will do this much. So next last we will have on Saturday, isn't it? Yes, ma'am. Okay. So then we will discuss few questions on linked list, stack, queue, and tree का और एक example मैं बता दूँगी. So Saturday I think my class is first class at 1 o'clock, isn't it? Yes, ma'am. I will start half an hour earlier at 12:30. Okay, so we can have a number of questions. I will not discuss any program, just problems. We will do few problems. Okay, so that you don't have to do any more practice on those things. So what's bolo. Tomorrow I think tomorrow lab. I think tomorrow is holiday. Okay, so otherwise if you will say I will take one extra class tomorrow. Yes? Anyone is saying something? So we will continue on Saturday. Thank you all. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you.